सी टैक्स का क्या है? This is my SOPL in books, which I'm making in my books. How it will look: revenue, cost of sales, GP. I will go by another method. I will not go by the normal method. Bank interest income. FD पे मुझे interest मिला है. Profit on sale of an asset. Then depreciation. You have paid a penalty for breach of contract. So any kind of penalty or fine. Loss on sale of an asset. जिन्होंने F6 किया है उनको ये टॉपिक इजी जाएगा. जिनका टैक्स हो गया है, it will be much easier for them to understand this thing. Loss on sale of asset. Then there is salary, advertisement expense. और क्या होता है? Stationery, let's say stationery expense which है. So this is my PM, right? So what is my profit? 40,000 is my profit. This is called book profit. Do I pay tax on book profit? No. ये profit मेरा 40,000 आया, इस पे 30% tax भर दिया, हो गया. Is it that simple? No, it's not like that. Tax is never paid on book profit. Tax is always paid on taxable profit. So tax authorities क्या करेंगी? मेरा एक और SOPL बनाएंगे, where I'll copy this side, I'll not copy the other side. They'll take this. ठीक है. Now what they are going to do is revenue तो ठीक है, ये मेरा business income है, वो बोलेंगे इस पे तो आपको tax देना ही पड़ेगा. Bank interest income, is it my business income? No. इस पे tax भरना पड़ेगा मुझे. Now tax में ना there are 5 headings: tax on business profits, tax on salary income, tax on house property, tax on other income, and tax on something. हाँ वही profits and gains from business and वही salary, then house property, then other capital gain and other income. These are the Indian taxation का heads. 5 heads में return भरा जाता है Indian citizen का. तो bank interest में मैं tax भरूंगी, but not as my business income, as other income. So यहाँ पे income tax वाले बोलेंगे ये income तो हम आपका zero कर देंगे. Profit on sale of asset 0, because this is capital gain. This is not business income. तो ये भी 0 कर देंगे. Depreciation का deduction मुझे देंगे? नहीं देंगे, because टैक्स के रूल्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन अलग तरीके से कैलकुलेट होता है. हम जैसा बुक में कैलकुलेट करते हैं, टैक्स वाले वैसे कैलकुलेट नहीं करते. टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका अलग ही होता है. ओके, सो दे विल से वी विल गिव यू अ डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन, बट बाय आवर रूल्स, नॉट योर रूल्स. तो यहाँ पे क्या करेंगे वो लोग? लेस डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स. मेरे बुक्स में डेप्रिसिएशन आता है 15, लेकिन उनके रूल्स के हिसाब से आता है 20, तो मुझे 20 का डिडक्शन चाहिए. ठीक. पेनल्टी और फाइन नहीं देंगे. वो बोलेंगे गलती तुम करो, कॉन्ट्रैक्ट तुम तोड़ो और प्रॉफिट कम करके टैक्स हमको कम दो. नहीं अलाउ करेंगे. लॉस ऑन सेल ऑफ असेट नहीं अलाउ करेंगे. व्हाई? अगेन इट्स कैपिटल थिंग. Salary is okay. Salary is my regular business expense. Advertisement is my regular business expense. Stationery is also okay. ठीक है. अब टैक्स प्रॉफिट कितना आया उनके रूल्स के हिसाब से, अथॉरिटीज के रूल के हिसाब से. Only did I do something wrong? या इधर कुछ गलत है? तो इधर कुछ गलत है. हाँ इतना ही आएगा ना, क्योंकि ये 45 का तो इनकम स्ट्रेट हटा दिया, प्रॉफिट था ही 40, तो 45 का इनकम हटा दिया. तो सी
बुक प्रॉफिट मेरा आ रहा था 40,000, टैक्स प्रॉफिट आ रहा है 5,000. नाउ इट इज नॉट ऑलवेज फेवरेबल लाइक दिस. समटाइम्स योर बुक प्रॉफिट इज 10 lakhs, टैक्स प्रॉफिट विल कम 50 lakhs. It can be either ways, but you have to pay tax on taxable profit उनके रूल्स के हिसाब से जो प्रॉफिट आता है उस पे. Got it? तो अभी तक जितने भी फाइनल अकाउंट्स में टैक्स का फिगर दिया हुआ रहता था ना, इट वाज अज्यूम्ड कि वो टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे उन्होंने कैलकुलेट करके दिया है. FR syllabus does not have this thing that from the book profit you find out tax profit by following their rules. That is covered in tax का syllabus, F6 syllabus, not here. ठीक है? So one thing before starting the chapter that you have to understand is tax is never paid on book profits, accounting profits. These are also called accounting profits. Tax is always payable on taxable profits, and that has to be calculated separately by applying the tax rules. Our job in FR is not to find out the taxable profit. Taxable profit ka figure you will be given directly. Now, another thing, how does the chapter start? Let me see. 281. हाँ, अंडर और ओवर प्रोविजन ही है ना पहले. अभी ये टॉपिक ना बहुत बच्चों को जर्नल एंट्री समझ लेंगे लेकिन टी अकाउंट नहीं आएगा. टी अकाउंट आ जाएगा तो P&L बैलेंस शीट के इफेक्ट्स नहीं आएंगे. आई एम शोइंग यू एवरीथिंग, दो एवरीथिंग इज नॉट नीडेड फॉर FR. सो प्लीज बी अटेंटिव. लेट्स टेक द ईयर 2020. टैक्सेबल प्रॉफिट्स नहीं, मैं सीधा टैक्स लायबिलिटी ले लेती. And why I make you understand so much in tax so that my job becomes easier when you come to SBI. Only for that reason, I put so much effort in tax. Tax liability is 1 lakh. Tax provision rather, not liability. अब यहाँ पे मैं दो चीजें करती हूँ. एक तो मैं टैक्स का टी अकाउंट बना देती हूँ. प्रोविजन्स, ये प्रोविजन फॉर टैक्स का टी अकाउंट. ठीक है, ये तुम्हारा डेबिट, ये तुम्हारा क्रेडिट. मुझे बताओ ये टैक्स, और इधर मैं जर्नल एंट्रीज लिखती हूँ. करंट ईयर में टैक्स का प्रोविजन 1 लाख करना है. इसकी एंट्री क्या होगी? व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री ऑफ दिस प्रोविजन? मुझे एंट्री चाहिए. हाँ, तुम्हारे में सही चाहिए एंट्री. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द जर्नल एंट्री. प्रोविजन का इफेक्ट कहाँ कहाँ जाता है उस हिसाब से एंट्री बनाओ. व्हाट विल बी द एंट्री फॉर प्रोविजन ऑफ टैक्स 1 लाख? एनीवन? हाँ बोलो ना. हाँ हाँ, एंड वेयर विल यू शो दैट क्रेडिट वाला प्रोविजन? सिंपल, P&L में टैक्स प्रोविजन इन P&L डेबिट टू टैक्स पेबल बोलते हैं. प्रोविजन बोल लो या पेबल बोल लो. टैक्स पेबल. टी अकाउंट में क्या दिखेगा? टी अकाउंट में मुझे क्रेडिट साइड दिखेगा बाय P&L, है ना. P&L में से इसका प्रोविजन बनाया. एंड डेबिट साइड क्या दिखेगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन. लेट्स से दिस इज द फर्स्ट ईयर. अरे क्या हो गया? अकाउंट क्लोज. नेक्स्ट ईयर आई डू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है, अब ईयर कौन सा चालू हो गया? इधर 2021. लेकिन तुम्हारा 2020 ईयर खत्म कब हुआ? दिसंबर में. उसके बाद तो तुम्हारा रिटर्न फाइलिंग का डेट तो होता है जुलाई में इंडिया में, और ईयर खत्म होता है मार्च में. लेट्स से तो जुलाई तक अभी 3 महीने होते हैं. तो पूरे साल में कोई थोड़ी कैलकुलेट करता है, एस्टिमेट करते हैं. तो दिस इज ऑलवेज एन एस्टिमेशन. तुम 31 मार्च पे बुक्स क्लोज करने के लिए थोड़ी पूरे साल का एक्चुअल बैठ के टैक्स कैलकुलेट करोगे. दिस इज ऑलवेज एन एस्टिमेट. That our estimated tax liability for the year 2020 will be 1 lakh. 2021 में आए, ऑडिट हुआ, टैक्स के हिसाब से P&L बना, फिर तुम्हारा रिटर्न फाइल हुआ, तब जाके तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी फाइनल हुई. एंड यू सेड दैट टैक्स लाइबिलिटी फॉर 2020 फाइनलाइज्ड केम टू 1,10,000. तो ये अंडर प्रोविजन हो गया ना तुम्हारा. तुम्हें प्रोविजन बनाने का था 1,10,000 का, तुमने बना दिया 1 लाख का. तो ये तो लास्ट ईयर का, और करंट ईयर का टैक्स वापस हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा. सो दिस इज अ साइकिल, राइट. एंड करंट ईयर 2021
tax provision, estimated tax liability is, let's say 1 lakh. So this is the scene. ठीक है. अब टैक्स लाइबिलिटी तुमने सेटल करी 1,10,000 पे, तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन लास्ट ईयर का 1 लाख था. टू कैश कितना लिखोगे इस साल? 110. तो और 10,000 का अंडर प्रोविजन वापस किधर से आएगा? करंट ईयर के P&L में डेबिट होगा ना. आई ऑल गेटिंग? सो करंट ईयर के P&L में से, तो ये तो अभी तुम्हारा लास्ट ईयर का वर्किंग खत्म हुआ. ब्रॉट डाउन था 1 लाख, लेकिन कैश पे करना पड़ा 1,10,000, तो P&L में एक्स्ट्रा डेबिट हुआ 10,000. इसकी एंट्री क्या होगी? टैक्स पेबल डेबिट टू कैश एंड P&L डेबिट, राइट? टैक्स पेबल डेबिट कितना? 1 लाख, P&L 10,000 and to cash. So this we are done with the last year. अभी करंट ईयर का अकाउंटिंग बाकी है. करंट ईयर में वापस इस साल का प्रोविजन का एंट्री. How much will that be? 1,50,000. और यहाँ पे क्या आएगा? अगेन बाय P&L करंट ईयर का जो प्रोविजन बनाना है, एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन क्या होगा? That's why when I did the final account sum, I always used to say current year का जो estimated provision है, that is your balance sheet का figure, because that is always the balance carried down. Got it? ठीक है, समझ में आया? अब 2022 में आते हैं और पता चलता है कि 2021 का लाइबिलिटी 130 पे सेटल हुआ, तो लास्ट ईयर ओवर प्रोविजन हो गया. आई विल फिनिश थर्ड ईयर ऑल्सो. So tax liability for the year 2021 got finalized at 130. तो पहले तो इसका अकाउंटिंग खत्म कर दूं. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करूंगी इधर. टू कैश 130. एंट्री अभी मैं नहीं पास करती. एंट्री वही होगा, टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट 130 टू कैश 130. ठीक है. अब करंट ईयर 2022 का प्रोविजन इज 180. बट नाउ यू अंडरस्टैंड 180 में से 20 का बैलेंस अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है, बिकॉज लास्ट ईयर ओवर प्रोविजन हो गया था. तो इस बार का प्रोविजन 180 का नहीं बनेगा. कितने का बनेगा? 160 का प्रोविजन बनेगा. तो यहाँ पे P&L में कितना आएगा? देखो लास्ट ईयर का अकाउंटिंग खत्म हो गया. 150 बनाया था, 130 पे किया, 20 इज द बैलेंस स्टिल लेफ्ट व्हिच आई विल यूज फॉर करंट ईयर प्रोविजन. तो करंट ईयर में P&L में जाएगा how much? 160. But balance carry forward will be always current year provision 180. So balance sheet figure is always current year का estimated provision. P&L figure changes depending on whether last year was under provision or over provision. Last year अगर under provision था तो current year estimate plus last year का जितना भी under provision था वो. अगर लास्ट ईयर ओवर प्रोविजन था तो करंट ईयर एस्टिमेट माइनस लास्ट ईयर का ओवर प्रोविजन. ये समझ में आया? आई गेव यू द नंबर्स, आई गेव यू द टी अकाउंट एंड आई गेव यू द जर्नल एंट्रीज. अब अंडर और ओवर प्रोविजन वाले सम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए. हालांकि दिस इज द सिंपलेस्ट सम. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस इन एग्जाम एट ऑल. तुम्हारा लग बहुत अच्छा होगा अगर तुमको ये अंडर ओवर प्रोविजन वाला सम आएगा तो. दिस इज द सिंपलेस्ट सम इन द होल चैप्टर. Got it? ठीक है. So let's do a few sums. ये वाला sum है. Would you like to try it on your own first? Yes. किसी को किसी को अभी भी कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लो. करंट ईयर बैलेंस शीट का फिगर क्या होगा? जो करंट ईयर का एस्टिमेटेड प्रोविजन है वो. करंट ईयर के P&L का फिगर क्या होगा? इफ आई वांट टू गिव यू, आई सी वो EPS में मैंने रट्टा मारने का चीज दे दिया था ना. बट this ideally you should understand. EPS understanding wise is not that important when you go to work, but tax is very important. Current year P&L figure, I can give you a formula, will be current year estimated provision
माइनस लास्ट ईयर अंडर प्रोविजन और प्लस लास्ट ईयर, सॉरी माइनस लास्ट ईयर का ओवर प्रोविजन और एड लास्ट ईयर का अंडर प्रोविजन। अगर लॉजिक समझ में आया है तो ये इजी होना चाहिए। तुम्हारे करंट ईयर का P&L फिगर क्या होगा, करंट ईयर एस्टिमेट ले लो। लास्ट ईयर अगर अंडर प्रोविजन था तो उसमें ये ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट ईयर कम डेबिट किया था, इस बार ज्यादा डेबिट करना पड़ेगा। सो ऐड लास्ट ईयर अंडर प्रोविजन, या तो लेस लास्ट ईयर ओवर प्रोविजन। दोनों साथ में तो नहीं हो सकते ना। अगर लास्ट ईयर अंडर प्रोविजन है तो करंट ईयर के एस्टिमेट में ऐड कर दो, लास्ट ईयर ओवर प्रोविजन था तो करंट ईयर के एस्टिमेट में से माइनस कर दो। सो द सिंपलेस्ट वे टू, ये पहले ही चैप्टर के स्टार्ट में ये बता देती तो इतना सब समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। देयर इज नो पॉइंट अनलेस यू अंडरस्टैंड द होल थिंग। स्टार्ट डूइंग इलस्ट्रेशन 1, देन वील टेक अ ब्रेक। किसमें रिमेनिंग बैलेंस? तो वो रिमेनिंग बैलेंस बच गया, जैसे 150 का था पे 120, मतलब लास्ट ईयर तुमने ओवर प्रोविजन कर दिया ना, तो वो बैलेंस को करंट ईयर के प्रोविजन के अगेंस्ट एडजस्ट करने का, करंट ईयर में उतना प्रोविजन कम बनाओगी। जैसे करंट ईयर में चाहिए था 180, लेकिन प्रोविजन कितने का बनाया 160, क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर का 20 ओवर प्रोविजन पड़ा था। तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। 20 जो पड़ा है that won't affect the P&L in that year. No ना, क्योंकि लास्ट ईयर के P&L में तुमने ज्यादा डेबिट कर दिया, तो इस साल के P&L में 20 कम डेबिट कर रही हो ना। बैलेंसिंग आउट नहीं बोल सकते, बिकॉज एक बार P&L को हिट हो गया तो हो गया। यू कैन गो बैक एंड चेंज द P&L ऑफ दैट ईयर। दैट ईयर का प्रॉफिट इज डन, फाइनलाइज्ड। तो यू कैन नॉट से लास्ट ईयर में 20 कम दिखा है, इस साल में 20 ज्यादा दिखा दिया तो बैलेंस कर रही हूँ। आइडियली इट इज नॉट, द टर्म इज रॉन्ग। Okay. Yeah. So everyone try illustration 1. We only want what will be the P&L figure and balance sheet figure in both the cases. That's it. Okay. So see, P&L ही निकाला है इन्होंने तो, क्योंकि बैलेंस शीट तो इट्स सिंपल। बैलेंस शीट में 2018 के P&L में ये फिगर जाना है, 2017 में ये गया होगा, तो अब करंट ईयर में क्या होगा? सो ईयर एंड एस्टिमेट 180 है, लास्ट ईयर का अंडर प्रोविजन हो गया, वो उसमें ऐड कर देंगे, तो करंट ईयर का P&L फिगर विल बी 195। ईयर एंड एस्टिमेट 180 और लास्ट ईयर ओवर प्रोविजन ऑलरेडी पड़ा है, तो प्रोविजन इस बार कम बनाएंगे। एनीवन एनी डाउट?